السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ہم ریڈ کر رہے ہیں صالحہ اقبال کا ناول دل رقصم اور ایپیسوڈ نمبر ہے 4۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزے کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے پڑھائی۔ علیزہ اپنے ہاتھ جلدی سے اپنی شال کے نیچے چھپاتے ہوئے کہتی ہے چائے کے ڈھابے پر؟ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے نہیں بھائی، وہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہاں۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، علیزہ کہہ ہی رہی تھی کہ زرخان غصے میں بول پڑتا ہے پر بابا کہتا ہے آپ ہمارا بھائی ہے۔ علیزہ معصومیت سے بھرے لہجے میں جواب دیتی ہے بہت جلدی مان جاتی ہو بابا کی بات، جو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہیں سنائی دیتا ہے تمہیں؟ لہجہ ابھی بھی کافی حد تک سخت تھا۔ سنتا تو ہے ہم آپ کی بات بھی بھائی۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مجھے بھائی مت بولا کرو۔ علیزہ کی بات دوبارہ کاٹ کر زرخان اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظروں سے تیر برساتے ہوئے کہتا ہے اور دوسری بات، تم لڑکا نہیں ہو، تم لڑکی ہو، لڑکیوں کی طرح بولا کرو۔ اپنے سامنے سر جھکائے اپنی سانسیں روکے ہوئے کھڑی علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو بھائی نہیں بلائے گا اور ہم لڑکیوں کی طرح ہی تو بولتا ہے لالا۔ علیزہ کہتے کہتے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے کہ علیزہ کی بات پر زرخان گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہتھکڑی مضبوطی سے ہاتھ میں بھینچ لیتا ہے۔ ابھی منع کیا ہے نا مجھے بھائی بولنے سے؟ زرخان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے پر ہم نے تو آپ کو لالا بولا ہے بھائی، پر ہم نے تو آپ کو لالا بولا ہے بھائی نہیں۔ علیزہ بالکل دھیمے لہجے میں بولتی ہے دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا پاگل لڑکی۔ اپنے لب بھینچتے ہوئے کہتا ہے پھر ہم آپ کو کس نام سے بلائے گا؟ علیزہ بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے جو تمہیں پسند ہے اس نام سے پکار لیا کرو۔ علیزہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو پرسکون کرتا زرخان بولتا ہے تو پھر ہم آپ کو زکوٹا جن بلائے گا، ٹھیک ہے لالا؟ علیزہ مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے ہاں ٹھیک ہے، بلاؤ مجھے ایک بار اور پھر دیکھو اس زکوٹا جن کو سچ میں جن بنتے ہوئے۔ اور تم جانتی ہو جب میں جن بنتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، بولو بن جاؤں جن؟ اپنی پینٹ کی جیب میں ہتکڑی ڈالتے ہوئے علیزہ کے بالکل سامنے اس کے قریب سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں علیزہ کے معصوم سے چہرے پر اس کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے پوچھتا ہے نہیں، ڈر کے مارے اپنے قدموں کو پیچھے اٹھاتے ہوئے کہتی ہے تو پھر وہ نام لو جو سن کر مجھے اچھا لگے۔ علیزہ کے پیچھے ہٹتے قدموں کی جگہ پر اپنے قدم رکھتے ہوئے اس کو مزید خوف زدہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے خان عالم، دھیرے سے منمنانے والے انداز میں کہتی ہے۔ علیزہ کہتی ہے اور زرخان کے قدم رکتے ہیں شاباش میرا بھالو، فی الحال کے لیے خان عالم ٹھیک ہے، اس کو جانے عالم میں جلد ہی بنا لوں گا۔ تھوڑا سا جھک کر علیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی کچھ پل کے لیے زرخان اسی پوزیشن میں کھڑا علیزہ کے معصوم سی بے حد خوبصورت اور دلکش سی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے جسے وہ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں کھوتا جا رہا تھا۔ چلو آؤ میں چھوڑ آتا ہوں یونیورسٹی تمہیں۔ زرخان خود کو کمپوز کرتا علیزہ سے دور ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں لالا، ہم چلا جائے گا۔ علیزہ زرخان سے دور ہونے پر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے، بیٹھو گاڑی میں یونیورسٹی چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں۔ زرخان سخت لہجے میں کہتا ہے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ علیزہ روتلو سی شکل بناتے ہوئے غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم غصہ دلا رہی ہو تو میں غصہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا ہے بے فضول میں غصہ کرنے کا۔ زرخان علیزہ کا رونے والا منہ دیکھ کر کہتا ہے میں چلا جائے گا خود سے، گاڑی ہے میرے پاس۔ علیزہ کہتی ہے اور کہتے ہی اپنی گاڑی کی طرف مڑ کر بڑھنے لگتی ہے کہ زرخان اسے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ زرخان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ علیزہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتی اور سیدھا زرخان کے سینے سے جا لگتی ہے۔ زرخان کے کھینچنے پر علیزہ کے سر پر اوڑھی ہوئی شال بھی اس سر سے اتر کر اس کے کندھوں پر گرتی ہوئی ہوا سے اس کے بال پھر سے اس کے چہرے پر بکھرنے لگ گئے تھے۔ میں کیا کروانا چاہتی ہو تم مجھ سے اس وقت؟ یہ کہ میں اس گاڑی کو یہیں جلا ڈالوں؟ زرخان شال کے نیچے سے علیزہ کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے گرنے سے سنبھالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں تو؟ علیزہ کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگ گئی تھی زرخان کی اس حرکت پر، اس کے درد دینے پر۔ نہیں تو گاڑی میں بیٹھو ورنہ سڑک پر تماشا لگ جائے گا، وہ تو آپ لگا رہے ہیں۔ روتے ہوئے فوراً سے زرخان کی بات کا جواب دیتی ہے لگوا کون رہا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم اپنی بیوی کو سڑک پر چھوڑ کر کسی کے انتظار میں چلا جاؤں؟ زرخان علیزہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو گالوں پر پھسلتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم آپ کا بیوی تو نہیں ہے۔ علیزہ روتے ہوئے کہتی ہے تم ہو بھالو، تم بچپن سے میری بیوی ہو، بچپن میں نکاح ہوا تھا میرا تم سے، اب صرف رخصتی کر کے تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانا ہے، اور ایک بار تم رخصتی کر کے میرے گھر آ گئی پھر میں تمہاری ان نادان غلطیوں کی سزا میں تمہیں کتنا تڑپا کر دوں گا اس کا اندازہ بھی تمہیں نہیں ہے۔ علیزہ کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس کے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے اب گاڑی میں خود سے بیٹھنا ہے یا میں بنا رخصتی کے شوہر بن کر تمہیں اپنی باہوں میں اٹھاتا؟ زرخان بول ہی رہا تھا کہ علیزہ اس کی قید سے نکل کر جلدی سے اپنی گاڑی سے اپنا بیگ اور موبائل لیے زرخان کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھتی ہے۔ علیزہ کی حرکت پر زرخان مسکراتے ہوئے جلد ہی جلد خود کو کمپوز کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ علیزہ کو دبک کر بیٹھا دیکھ زرخان اس کی بازوؤں سے بیگ لے کر گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھتا ہے۔
और ख़ुद ही हाथ बढ़ाकर अलीज़े की तरफ झुकते हुए सीट के पीछे लगी हुई सीट बेल्ट को निकालने लगता है। ज़रख़ान को अपने चेहरे की तरफ झुकता देख अलीज़े अपना मुंह फेर लेती है। अलीज़े की बढ़ती हुई धड़कनों को सुनते हुए ज़रख़ान सीट बेल्ट खींचकर अलीज़े की सीट पर लगाता है और ख़ुद अपनी सीट पर वापस आकर गाड़ी स्टार्ट करता यूनिवर्सिटी जाने के लिए बढ़ता है। अलीज़े एक नज़र गर्दन घुमाकर ज़रख़ान को देखती है और जब अमाया को अपना ज़रख़ान के साथ यूनिवर्सिटी जाने का मैसेज पर बताती है। अमाया और ज़ैन भी दोनों गार्ड्स के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। साई खान और आरिश दोनों पंचायत पहुंच चुके थे। तकरीबन पंचायत में 150 से ज़्यादा लोग थे। आज ही ज़्यादा लोग थे क्योंकि सब आज होने वाले फैसले को सुनने के लिए बड़े बेताब हो रहे थे। सब लोगों की नज़रें मुसलसल एक ही शख्स पर टिकी हुई थी जो पंचायत में लकड़ी की एक मजबूत कुर्सी पर एक मजबूत इंसान की तरह, एक शहनशाही इंसान की तरह बैठे हुए सरदार अब्बास खान पर थी। साई खान के आसपास कुछ बड़ी पोस्ट्स के पुलिस ऑफिसर्स भी थे और बहुत से दूसरे गांव के सरदार भी। वो सब भी आज के फैसले के लिए यहाँ मौजूद थे। आरिश साई खान के साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए इन सब मर्दों की तरफ देख रहा था जो अपने अपने लालच के नतीजे को सुनने के लिए यहाँ मौजूद थे। साई हुक्म सुनाए अपना। एक पुलिस ऑफिसर साई खान की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, अब ये क्या कहेंगे, अदाबाई ने सबको खरीदा है, इनकी कीमत दी है, इसने पैसों से खरीद कर सब लड़कियों को यहाँ बुलाया है और उन्हें रिहा कर दे, ये नामुमकिन है। पुलिस की बात का जवाब दूसरे गांव के सरदार देते हैं। साई खान कुछ नहीं कहते हैं, वो खामोशी से सब सुन रहे होते हैं। जो भी है वो सब छोटी बच्चियां हैं, किसी को हक नहीं है इन बच्चियों की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद करने का। दूसरे गांव के सरदार की बात का जवाब आरिश देता है, आज बच्चियां हैं, कल बड़ी हो जाएंगी और वैसे भी इनकी किस्मत में तवाइफ लिखा हुआ है तो कोई क्या कर सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है अदाबाई से इन बच्चियों को दूर करने का। अब की बार एक और गांव के सरदार जवाब देते हैं, किस्मत का लिखा भी बदल सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की जाए। अब की बार साई खान सख्त और तल्ख लहजे में दूसरे गांव के सरदार को लाल सुर्ख आंखों से देखते हुए कहते हैं, यहाँ कोशिश करना बेकार है साई खान, अदाबाई उन्हें रिहा नहीं करेगी और अगर मैंने करवा लिया तो। सरदार की बात काटते हुए साई खान अटल लहजे में कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हम अपनी सारी सरदारी तुम्हारे सपुर्द कर देंगे। कुर्सी से खड़े होकर साई खान की तरह अटल लहजे में कहते हैं, ठीक है फिर अपने अल्फाजों पर कायम रहना। साई खान कहते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और सरदार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हम अपनी बातों से पीछे हटने वाला सरदार नहीं है साई खान। साई खान की आंखों में आंखें डाले से चैलेंज करती नज़रों से बोलते हैं, देखते हैं फिर। साई खान कहते हुए पंचायत से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाते हैं। इनके पीछे पीछे आरिश भी पंचायत से बाहर निकल जाता है। आरिश तुम घर जाओ, मैं रात तक आ जाऊंगा। ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए साई खान कहते हैं, खान बाबा कहाँ जा रहे हैं, मैं ले चलता हूँ। आरिश उन्हें गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए देख कर कहता है, नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे खुद इस जगह से नफरत है, तुम्हें वहाँ कैसे लेकर जाऊँ बेटा, तुम हवेली जाकर आराम करो, मैं खुद चला जाऊंगा। साई खान कहते ही गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और पंचायत से बाहर निकलकर सीधा कोठे की तरफ जाने का रुख करते हैं। आरिश नज़रों से ओझल होने तक साई खान की गाड़ी को देखता रहता है। इनके मुकम्मल तौर पर जाने के बाद ही आरिश भी हवेली जाने के लिए गार्ड्स की गाड़ी में सवार हो जाता है। अमाया और जैन दोनों गार्ड्स के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे पर अभी अलीज़े नहीं आई थी। जैन भाई, लैला नहीं आया है अभी तक। अमाया यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पूछती है, आ जाएगी, इसका ज़ाकोटा जिन इसे छोड़ने आ रहा है, इसका शोहर है वो, इतनी जल्दी थोड़ी ले आएगा वो। जैन अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए सीढ़ियों पर चलते हुए जवाब देता है, लाला हमारा शोहर कब आएगा जो हमें इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़ने और लेने आएगा। अमाया अपने सर से चादर उतारते हुए पूछती है। अमाया की बात पर हैरानगी से जैन अमाया को देखते हुए बोलते बोलते आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, जो तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपनी लड़कों को हूरें पसंद हैं, चुड़ैले नहीं। जैन अमाया की तरफ बढ़ते हुए इसकी पुश्त को देखते हुए कहता है, जो इससे कुछ कदम दूर ही खड़ी होकर खुशी से भरपूर अंदाज में पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ देख रही होती है। क्या देख रही हो? जैन अमाया के पास आता है, इसके चेहरे को देखते हुए पूछता है, लाला ये कितना अच्छा है। अमाया खुशी से झूमते हुए कहती है, हाँ यूनिवर्सिटी तो अच्छी है पर माहौल नहीं। जैन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मतलब? हैरान कुन नज़रों से देखते हुए तजस्सुस से पूछती है, मतलब वो देखो, यहाँ पर कोई पढ़ाई कम करने और एक दूसरे को चूने लगाने ज़्यादा आता है। किताबें पढ़ने की उम्र में लव मैसेजेस पढ़ते हैं, वो भी फॉरवर्ड वाले। जैन और अमाया दोनों बातें करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए जैन अपनी बात कहता है और कहते ही हंस पड़ता है, माहौल तो इंसान खुद बनाता है ना, अब हर लड़की एक जैसी भी नहीं होती है। हमें ही देख लें, हम भी लड़का ढूंढ रहे हैं अपने लिए, इसके लिए हम मन्नत भी मांग रहे हैं, पर आपको पता है हमें इन लड़कों जैसे कोई नहीं चाहिए, हमें तो खान बाबा जैसे या फिर अपने प्रिंस की तरह का लड़का चाहिए। खड़ूस रौबदार, वो जिनकी एक बात पत्थर पर लकीर हो जाती है, वो जो हर काम वफादारी से करते हैं, बेईमानी से और बेईमानी की कमाई से नफरत करते हैं, एकदम खान बाबा जैसे। अमाया कहते कहते अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए उल्टे कदम उठाते हुए कभी जैन को तो कभी यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों को देखती है। उल्टे कदम चलते चलते अमाया अचानक से एकदम
अपने पीछे किसी वजूद से टकरा कर एक पल के लिए वहीं साकित हो जाती है। अमाया के करीब किसी को देखते हुए ज़ियान इसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि अमाया इससे पहले ही पलट कर अपने पीछे देखती है। पीछे जैसे ही देखती है, इसकी नज़र एक चौड़ी कसरती बॉडी वाले आदमी के ब्लैक कलर की शर्ट से दिखते हुए गोरे चिट्टे कसरती सीने पर नजरें जा ठहरती हैं। गले में लटकता हुआ एक ए नाम का अल्फ़ाबेट अमाया वो देख ही रही थी। सर उठाकर सीने से नजरें हटाकर अपने सामने खड़े आदमी के चेहरे की तरफ देखने लगती है कि वो अमाया की नज़रों में आता इससे पहले ही वो अमाया को खुद से दूर करता है और इसको क्रॉस करता आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके जाते ही ज़ियान अमाया के पास आता है। अमाया का हाथ पकड़कर अपने दरवाजे से साइड पर करता है, क्योंकि इस आदमी के पीछे पीछे पूरी यूनिवर्सिटी का स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स, सब के सब इस आदमी के पीछे पीछे चलते हुए दौड़ते हुए जाते हैं। ये कौन है लाला? अमाया की नज़रें अभी भी इस शख्स पर थम गई थी। अपने सामने ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस आदमी को जाता देखते हुए पूछती है। ये आर्यन शाह है, इंडिया के सियासतदान। अमाया ज़ियान के पीछे से ज़ियान का दोस्त कंधे पर बैग डालते हुए हाथ में प्रोजेक्ट शीट पकड़े हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है। ब्लैक कलर के ब्रांडेड 3 पीस में सूट में मलबूस, जिसकी शर्ट के शुरू के 2 बटन खुले हुए थे, वहां से सीने पर लटका हुआ सिल्वर रंग का ए नाम का अल्फ़ाबेट बआसानी दिखाई दे रहा था। पैरों में ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए, आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाए, बाएं हाथ में सिल्वर रंग की ब्रांडेड घड़ी पहने हुए, बालों को जेल की मदद से सेट किए हुए, एक अलग सी पर प्यारी सी खुशबुओं वाला परफ्यूम जिस लड़की के पास से गुजरता इसे अपनी झलक दिखाने से पहले ही अपनी खुशबू से ही पागल कर देता था। आर्यन शाह के आगे की तरफ बढ़ते हुए कदम थे कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां पहली और दूसरी मंजिल पर खड़ी हुई लड़कियों की नज़रें और चीखें दोनों आर्यन शाह पर थीं। इसे जाता देखते हुए सब लड़कियां और ज़ोर से चीखें मारने लग गई थीं, पर किसी की भी चीख का असर आर्यन शाह पर नहीं हो रहा था। वो मगरूर शख्स, हर लड़की को नज़रअंदाज करने वाला सियासतदान, जो लड़कियों से ज़्यादा पसंद और इश्क पैसे से करता है। आर्यन शाह के दिन का आगाज़ होता भी पैसे से है और ख़त्म भी पैसे पर होता है। इंडिया का वो मगरूर कोल्ड पर्सनैलिटी वाला सियासतदान, जिसके चर्चे पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे कश्मीर में भी थे। आखिरकार कश्मीर की हुकूमत को चलाने वाला वो वाहिद जो था, जो सबके जहन में तो अच्छे नामों और कामों से था, पर हकीकत में वो क्या था सिर्फ वो ही जानता था। आर्यन शाह जो चाहता था कश्मीर में वही होता है। इसके एक फैसले के मुंतज़िर वहाँ की हुकूमत कुछ भी बर्बाद और आबाद बआसानी कर सकते थे। आज कश्मीर में वो पूरे 17 साल के बाद आया था। आज कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ था जो इसके फैसले के खिलाफ था, जिसमें इसकी रजामंदी नहीं थी, पर या फिर ये कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं था। आर्यन शाह सबको इग्नोर करता हुआ सबकी नज़रों का मरकज़ बनते हुए अपनी ब्लैक कलर की रॉयल गाड़ी की तरफ बढ़ता है, जिसके पीछे की प्लेट का नंबर SSS555 था और आगे की प्लेट पर बड़े अल्फ़ाबेट में आर्यन शाह लिखा था और इसके नीचे छोटे अल्फाजों में द ग्रेट पॉलिटिशियन लिखा हुआ था। आर्यन शाह को अपने नाम के साथ पॉलिटिशियन लगाना पसंद था। वो पिछले 10 सालों से सियासत में जो था, अब इसे अपने नाम के साथ इस लक़ब से इश्क हो चुका था। आर्यन अपनी गाड़ी में सवार होता है कि इसके पहले 2 गार्ड्स की गाड़ियाँ और इसके पीछे दरमियान में आर्यन की गाड़ी, फिर 2 और गार्ड्स की गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ निकलती हैं। माशाल्लाह, क्या एटीट्यूड है। आर्यन की गाड़ी को जाता देखते हुए अमाया खुशी से भरपूर लहजे में कहती है। अमाया की बात पर ज़ियान अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए इसको घूरियाँ करवा रहा होता है, जिसको वो इग्नोर करती मुड़कर यूनिवर्सिटी के अंदर आगे की जानिब बढ़ जाती है। सईद खान भी कश्मीर की पुरानी गलियों में एक बड़ी सी पुरानी सी इमारत के सामने अपनी गाड़ी में सवार बैठे हुए थे। गानों की आवाज़ें ज़ोरों शोर से इनके कानों में पड़ रही थीं, जिनको सुनते हुए वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे हुए बैठे हुए थे। गुस्से से दिमाग की शरियान फट जाने के मकाम पर थी, पर बात कई नन्ही शहजादियों की थी, जिनकी हिफाजत के लिए खान किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। सईद खान गाड़ी में सवार अंदर भेजे हुए अदा बाई के लड़के को इससे मुलाकात का वक्त मांगना या फिर ख़रीदता है। अदा बाई, आपसे मुलाकात करने के लिए कोई आया है। ब्राउन कलर के लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए फूलों की खुशबुओं से महका हुआ कमरा, हल्की सी आवाज़ में चलते हुए पुराने गाने जिन पर पुराने ज़माने की तवाइफ रक्स कर रही थी, पूरे कमरे की लाइट्स बंद किए हुए, मोमबत्तियाँ जलाई हुई, ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ एक लोहे का बॉल जिसमें से निकलता धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। मोमबत्तियों की हल्की हल्की सी रोशनी में धुआं छुपी हुई सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस 22 साला लड़की, जो अदा बाई के नाम से मशहूर थी, कश्मीर की सबसे जवान, सबसे खूबसूरत, आम लड़कियों से ज़्यादा हुस्न रखने वाली तवाइफ, जो 22 साल की उम्र में अपने रक्स से मशहूर हुई, एक पूरा कोठा चलाती थी। बेड पर सीधी होकर लेटी हुई अदा बाई गोरी रंगत लाइट ग्रीन कलर की
नेचुरल आंखें जिन्हें काजल और लाइनर की वजह से बेहद खूबसूरत बनाया हुआ था। अदा बाई को देखना, इससे मुलाकात करना कोई आम नहीं था। वो मशहूर अपने नाम, अपनी खूबसूरती से थी, जिसे चंद लोगों ने ही देखा जिनके सामने उन्होंने रक्स किया था। 22 साल लड़की एक पूरे कोठे को चलाती है, ये सुनकर ही अब तक कई मर्द इस कोठे को, इसमें मौजूद हर लड़की को खरीदने की अच्छी खासी रकम अदा बाई को देने के लिए आते हैं, पर हर मर्द को वो लाजवाब करती वहाँ से भेज चुकी थी। अदा बाई के लिए ये पुरानी इमारत में बना हुआ कदीम कोठा अब इसका घर बन चुका था, जहाँ वो रहती और दूसरों को रखती अपनी मर्जी से थी, क्योंकि इस कोठे को दोबारा शुरू करने वाली अदा बाई ही थी। क्या वजह थी वो कोई नहीं जानता था, क्योंकि जानने की ख्वाहिश भी किसी की नहीं थी। अदा बाई की खूबसूरती, इसके दिल को छू जाने वाले रक्स ने हर मर्द के मुंह को अपनी तरफ उठते सवालों के मुंह को बंद कर रखा था। गोरी रंगत पर ज़बरदस्त मेकअप किए हुए, लाल गाल, लाल रंग की लिपस्टिक में रंगे हुए होंठ, मेकअप फुल था पर कुछ भी ओवर नहीं लग रहा था। पैरों में घुंघरू पहने हुए बेड पर सीधी होकर लेटी हुई, अपने बालों को खुला हल्का हल्का सा कर्ल किए छोड़े सीधा ज़मीन से लग रहे थे, अपनी बाई टांग खड़ी की हुई, बार बार अपना पैर बेड पर मारती घुंघरुओं की आवाज़ सुनते हुए अदा बाई मेहंदी से रंगे लाल सुर्ख हाथों में गुलाब के फूल को पकड़े हुए इसकी एक एक पत्ती तोड़कर अपने पूरे खाली पेट पर गिरा रही थी। लाल लहंगा, जिसकी चोली बिल्कुल छोटी सी थी, गला डीप था, जिसे एक वक्त जेवरात से छुपाया गया था। अदा बाई का इतना सजना धजना साफ बता रहा था कि वो अभी रक्स करके आई है। आज कौन आया था? थके हुए हल्के फुल्के से अंदाज में पूछती है। सरदार अब्बास खान। सुनते ही अदा बाई फौरन से उल्टी होकर बेड पर लेटती है। वो जैसे ही उल्टी होती है, पैरों तक पहना लहंगा इनकी पिंडियों तक आ जाता है, जिससे इनकी गोरी चिटी टांगे, पैरों में बांधे हुए घुंघरू इनके सामने खड़े लड़के को दिखने लगते हैं। लड़की की नज़रें जैसे ही अदा बाई की टांगों पर जाती हैं, इसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट छाने लगती है। अदा बाई के कोठे पर आज एक सरदार खैरियत है? सरदार की कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई? अदा बाई पूछती है कि इनके सामने खड़े लड़के की नज़र इनके डीप नेक से ज़ाहिर होते हुए जिस्म पर जाती है। वो तो आपको देखने के बाद मर्दों की ख़राब होती है, फ़िलहाल देखने में तो ठीक लग रहे हैं। लड़की की नज़रें अपने आप पर देखते हुए अदा बाई कोल्ड अंदाज में इसको देखती है। ठीक है तो रवाना कर दें इनको, ठीक होश में रहने वाले मर्दों की जगह नहीं है हमारी दुनिया में। कहते ही दोबारा सीधी होकर लेट जाती है। पर उन्होंने आपके टाइम के पैसे दिए हैं, लड़का कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, पर रुक जाता है। अदा बाई के कमरे में आने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। कितने पैसे? अपने आप पर फिर से फूल डालते हुए पूछती है। 1 लाख। लड़का अपनी जेब से पैसे निकालते हुए इनकी तरफ देखते हुए कहता है। 1 रात के? बिना लड़के की तरफ देखते हुए पूछती है। नहीं, 1 घंटे के। उन्हें सिर्फ आपके साथ 1 घंटा चाहिए। सरदार तो बहुत अमीर लगता है, 1 रात की कीमत वो 1 घंटे की दे रहा है। अदा बाई कहते हुए बेड पर उठ बैठती है। आप मिलेंगे इनसे? अदा बाई के बिखरे बालों वाली पुष्प को देखते हुए कहता है। ज़रूर, पैसे को कौन मना करता है, और हम भी मिलना चाहेंगे ऐसे मर्द से जिनके सिर्फ हमने चर्चे सुने हैं। उन्हें भी आंखों को ठंडा करने का मौका मिलना चाहिए। अपने चेहरे को एकदम कोल्ड रखे बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। खुद को आईने में देखते हुए मुस्कुराते हुए लड़के को बाहर जाने का इशारा करती है।